Everyone and welcome back to my channel. Today we will be doing periodontics. We will be doing the synopsis of periodontics, and this is the first video for this synopsis, and I'll be trying to cover as much as I can, but if some portion will not be able to cover it, then another video will be uploaded. So I'll make sure that in 2 or 3 videos the whole of the periodontic synopsis will be covered. So without wasting time, let's get started. People who are new on my channel, I would like to introduce myself that this channel, Dental School, is basically for your preparation. If you are doing your BDS and want to pursue your masters, then this channel will definitely help you, because here will do the very uh, famous books, a number of questions and important things which will help you to crack your exams. Okay, so let's get started. This is periodontics, and a number of scientists in the periodontics which are related to this field, and a number of terms are also there, that a number of terms are defined or introduced by a number of scientists. So this is a short table that usually people ask in the questions in your entrance exam, so you should know about this. A number of terms. First of all, we'll be doing just the names. We'll not be going into the deep. We'll not be going to the details of the terms, that what is rampant caries, what is early childhood caries. So we'll be doing just the terms. That rampant caries is related to a scientist, Maslach. Okay, early childhood caries by Davis. Nursing caries, also called as another term, that is nursing bottle caries. So there is a difference between nursing and nursing bottle caries. So nursing caries is introduced by Venter et al. And nursing bottle caries by Jacobi. Acidogenic theory, which is related to caries, that is given by Miller. And psychoanalytical theory is given by Sigmund Freud. Now this is related to child theory, so child psychology theory. So that is psychoanalytic theory by Sigmund Freud. Psychosocial theory, another example of child psychology. So that is given by Erik Erikson. Cognitive theory, same, by Paget. Hierarchy of needs by Maslach. Social learning theory by Bandura. Classical conditioning theory by Pavlov. Operant conditioning theory by Skinner. So all these, from psychoanalytical to operant conditioning, all these theories will be discussed in detail in the further video, because all these are the theories of child psychology. So they will be covered in detail later, so don't worry about it. Then we have tell-show-do technique, which is also related to child psychology, that is by Edelson. Modeling theory, home technique. So all these will be discussed in detail, so don't worry about it. Then we have stainless steel crowns, which is given by Hampre. Classification of occlusion for primary teeth, that's a different thing, not related to child psychology. So this is about the occlusion, and that's a classification that is given by Bombay. Then there is a caries triad, which is given by Keyes, and this triad is being modified to tetrad and given by Newburn. Prophylactic odontology by Hyatt. Fissure eradication by Bodecker. Acid etching theory by Buncor. Bis gamma resin, Bowman. Father of serial extraction, that's in Nance. That's an important thing, because it is also there in your orthodontics. Who is the father of serial extractions? That is extraction is basically in a series, like first of all some particular tooth will be extracted, then another tooth will be extracted. So that thing is being told by Nance. And then there's a calcium hydroxide related term, which is given by Hernam, that what is calcium hydroxide, what are the uses of it, how it is being used in periodontics. So that's given by Herman. So all these are the names that you should not worry, because they will be repeated further in the synopsis, so you will get used to it. अब हम बात करेंगे कीरीज के बारे में. मैं थोड़ा हिंदी में बोलूंगी, थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगी, ताकि चीजें समझ में आ जाए. कीरीज क्रिटिकल पीएच यहाँ पे पूछी गई है पेपर में आपसे, अगर पूछे कि क्रिटिकल पीएच एट विद डीमिनरलाइजेशन. डीमिनरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, कि जब एक होता है किसी में मिनरलाइजेशन होना, उसके अंदर मिनरल्स ऐड ऑन होना, एक होता है उसमें से मिनरल्स निकलना.
तो डीमिनरलाइजेशन जब होती है तो वो उसकी जो क्रिटिकल पीएच होती है जब वो शुरू होती है डीमिनरलाइजेशन, वो होती है 5.2 to 5.5। अगर माउथ में ये पीएच बन जाती है, अगर आपने कोई ऐसा फूड आइटम खाया जिसकी वजह से पीएच आई, तो डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, केरीज से रिलेटेड ये सारी चीजें बता रखा है कि भी केरीज के लिए क्रिटिकल पीएच क्या होती है। केरीज में एक टर्म होती है कीज ट्राइड, जिसके अंदर तीन चीजें होती हैं। ट्राइड मतलब तीन चीजें होती हैं, एक होस्ट होता है, एक एजेंट होता है, एक सबस्ट्रेट। होस्ट ऑब्वियसली जिसके ऊपर चीजें हो रही हैं, होस्ट होता है टूथ। सबस्ट्रेट वो होता है जो हम चीजें खाते हैं, जैसे कि हमने शुगर लिया, जो भी कुछ लिया। और एक होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट फैक्टर की मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कौन सा मतलब माइक्रोब कह सकते हो आप, कौन सा माइक्रोब है। एक्टिनोमाइसिस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, म्यूटांस, कौन सी चीज है। तो इन तीनों की इंट्रैक्शन जो होती है बहुत ज्यादा जरूरी होती है, एसेंशियल होती है, जिसकी वजह से इनिशिएशन और प्रोग्रेशन होती है केरीज की। ठीक है, तो केरीज कैसे शुरू होंगी, कैसे प्रोग्रेस करेंगी, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, दैट इज कीज ट्राइड। अब हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ें तो टूथ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। एक छोटी सी बात हमेशा बतानी चाहिए कि जो सरफेस एनामल होती है, जो ऊपर की तरफ जो क्लिनिकली दिखती है, वो काफी रेजिस्टेंट होती है इन रिस्पेक्टिव टू सब सरफेस एनामल। तो जो सरफेस के अंदर एनामल थोड़ी सी होती है, जंजाइवा आ जाता है, उसके नीचे भी थोड़ी सी रह जाती है, वो इतनी रेजिस्टेंट नहीं होती जितनी सरफेस वाली होती है। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करता है। पिट्स अगर हैं, फिशर्स अगर हैं, हाइपोप्लेजिया अगर है, तो वो टूथ ज्यादा केरीज को प्रॉन होगा। पोजीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि अगर टूथ की पोजीशनिंग खराब है, टेढ़े मेढ़े आए हुए हैं, तो उसमें फूड लॉजमेंट हो सकती है, तो वहां पे कीरीज हो सकती हैं। तो ये टूथ फैक्टर्स हैं जिसमें बेसिकली कॉम्पोजिशन, मॉर्फोलॉजी और पोजीशन आता है। एजेंट्स, भाई मैंने बात करी कि एजेंट्स क्या होते हैं। एजेंट जैसे कि ओरल बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस या नाइजेरिया, एक्टिनोमाइसिस या वेनिला, ये जो चार चीजें हैं, अगर ये बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस होते हैं ओरल कैविटी में तो ज्यादा चांसेस होते हैं कीरीज के। फिर हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट चीजें आती है। सबस्ट्रेट जैसे कि आप क्या खा रहे हो, ठीक है, किस फॉर्म में खा रहे हो, लिक्विड फॉर्म में खा रहे हो, सॉलिड फॉर्म में खा रहे हो, कितनी बार खा रहे हो, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, उसके अंदर केमिकली कॉम्पोजिशन क्या है, कि उसके अंदर सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है। सो दैट इज योर सबस्ट्रेट। साथ में एनवायरमेंटल वाली चीजें भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करती हैं कि आपके मुंह में सलाइवा, कई लोगों के मुंह में ज्यादा सलाइवा होता है, कई में नहीं होता है, प्लाग कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता है, तो सलाइवा और प्लाग पे भी डिपेंड करता है। सो दैट इज अबाउट कीज ट्राइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट another thing which is related to caries, that is window of infectivity। एक टर्म होती है ये विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी, एक पर्टिकुलर पीरियड पे होती है। ये पूछा जा चुका है कई बार। होता क्या है कि जो प्राइमरी टीथ इरप्ट करते हैं, दे प्रोवाइड अ वर्जिन हैबिटेट which enables Streptococcus mutans to colonize the oral cavity, avoiding the competition with other indigenous bacteria. This is called as window period and is established by 19 to 33 months। मतलब क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में और कोई ऐसा बैक्टीरिया वगैरह नहीं होता, तो प्रॉपरली क्या होता है कि एक ऐसा हैबिटेट होता है जिसमें कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स एंटर करता है और उसको अपना कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं मिलता, तो वो बहुत फ्रीली ग्रो करता है। तो ये जो पीरियड होता है इसको विंडो इफेक्टिविटी कहते हैं। ये जब बच्चा 19 मंथ्स का होता है और 33 तक जब तक जाता है तब तक ये पीरियड रहता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दिस पीरियड जो सेप्टेम्बिकॉन्स होता है उसको डिफिकल्टी हो जाती है एस्टेब्लिश करने में, बिकॉज काफी सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, काफी सारी इंडिजिनस बैक्टीरिया आ जाते हैं। फिर जब सेकेंड पीरियड आता है, सेकेंड विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी आती है, वो तब होता है इज प्रेजेंट इन परमानेंट डेंटिशन। वो परमानेंट डेंटिशन में ये पीरियड आता है और वो 6 से 12 साल तक की एज में आता है। ठीक है, तो ये होता है विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी, मतलब जब आपके कॉम्पिटिटर्स ना हो और एक पर्टिकुलर स्पीसी ग्रो करे, तो दैट इज योर विंडो इन्फेक्टिविटी। नेक्स्ट, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो काफी ज्यादा केरीज को बढ़ाते हैं। सेलेनियम, कैडमियम जो है इनमें से आता है, आपको याद रखना है। उसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है, हमेशा वैसे भी पूछा जाता है, पेरियो कर रहे हो आप, एंडो कर रहे हो आप, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो डेंटीन होती है उसमें एक अफेक्टेड डेंटीन होता है, इन्फेक्टेड डेंटीन होता है। ठीक है, तो जो इन्फेक्टेड डेंटीन होती है और अफेक्टेड में क्या फर्क होता है। इन्फेक्टेड का मतलब हमेशा याद रखिए कि जिसके अंदर इन्फेक्शन है, दैट इज इन्फेक्टेड। अफेक्टेड वो होती है जो अफेक्ट हो जाती है बट उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, दैट्स द डिफरेंस। इन्फेक्टेड एंटीन में होता क्या है, वो हाईली डीमिनरलाइज्ड होती है, उसके काफी सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। अफेक्टेड एंटीन में
इंटरमीडिएटली डीमिनरलाइज होती है, मतलब इतना नहीं निकलता, ठीक है, वो हाईली डीमिनरलाइज होती है। इन्फेक्टेड वाली जो होती है उसके दैट रिमेन अनमिनरल, मतलब अनमिनरलाइजेबल, आप इसमें दोबारा से मिनरल्स नहीं आ सकते, लेकिन अफेक्टेड वाली में दोबारा आ सकते हैं, दैट इज रीमिनरलाइजेबल। इन्फेक्टेड वाली में सेंसेशंस नहीं होती, इन्फेक्शन जब आ जाता है तो सेंसेशंस चली जाती हैं, अपोजिट अफेक्टेड में सेंसेशंस होती हैं। इन्फेक्टेड वाली को कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्टेड है? हम उसको स्टेन कर सकते हैं 1% एसिड रेड सोल्यूशन से इन 0.2% प्रोपिलीन ग्लाइकोल से। तो हमें अगर हम इसे स्टेन हो जाता है इस सोल्यूशन से तो इसका मतलब वो इन्फेक्टेड एंटीन है। अफेक्टेड एंटीन स्टेन नहीं होती, ठीक है। इन्फेक्टेड एंटीन को निकाल देना चाहिए, एक्सकेवेट कर देना चाहिए, लेकिन अफेक्टेड एंटीन को रहना देना चाहिए वहीं पे ताकि वो वापस से रीमिनरलाइज हो जाए। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, पता होना चाहिए, क्योंकि आप पेरियो कर रहे हो, एंडो कर रहे हो, हर जगह कर रहे हो, ये डिफरेंस आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कौन सा स्टेन होता है, क्या होता है, कितना परसेंट होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। फिर एक छोटी सी बात, लैक्टोज का कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट मिल्क में बताया हुआ है कि बोवाइन मिल्क में सिर्फ 4.5% होता है, लेकिन अगर ह्यूमन मिल्क की बात करें, ब्रेस्ट मिल्क की जो मदर फीडिंग होती है उसमें 7.2% होता है, सबसे ज्यादा लैक्टोज कंटेंट उसमें होता है। फिर जो मिल्क पाउडर्स आते हैं मार्केट में उसमें 7% होता है। एक नई चीज उसके बाद बताई रखी है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केरीज हो गई होती हैं उनका एक नया नाम दिया गया है आजकल, जिसको हम एमडी बोलते हैं, मतलब मेटर्नली डराइव्ड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स डिजीज। मतलब मदर से जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स डिजीज आ जाती है बच्चे में, वो अर्ली चाइल्डहुड केरीज को वो टर्म दिया गया है। मतलब अर्ली चाइल्डहुड केरीज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटर्नली डराइव्ड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स डिजीज, और जो मेन मेथड इसका ट्रांसमिशन का होता है वो किसिंग होता है, ठीक है, मदर से बच्चों में आती है। उसके बाद एक नई चीज, एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही बेहतरीन चीज है केरिडेक्स। एक ऐसा सिस्टम होता है केरीज रिमूवल का, इट्स अ केमिको मैकेनिकल सिस्टम ऑफ केरीज रिमूवल। इसके अंदर दो सॉल्यूशंस होते हैं, पहले सॉल्यूशन में तो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है और दूसरे सॉल्यूशन में काफी चीजें होती हैं, ग्लाइसिन होता है, अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये जो दो सॉल्यूशंस होते हैं ये केमिकल और मैकेनिकल सिस्टम बनाते हैं जिसकी वजह से आप केरीज को रिमूव कर सकते हो। तो ये आपका क्लिनिक्स में बहुत यूज होता है केरिडेक्स। पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस में क्या क्या होता है। पहले सॉल्यूशन में सिर्फ सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, बाकी में सारी चीजें आती हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइसिन और अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। फिर हमारे पास कुछ शुगर सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होते हैं, पता होने चाहिए कि कौन से होते हैं। कुछ कैलोरिक स्वीटनर्स होते हैं, कुछ नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स होते हैं, ठीक है। कैलोरिक स्वीटनर्स जो डाले जाते हैं जिनमें कैलोरीज होती हैं, मतलब काफी सारी चीजों में खाने की डे टू डे चीजों में डलते हैं, उसमें क्या 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 चीजें होती हैं, जाइलिटॉल, लैक्टिटॉल, सॉर्बिटॉल एंड लैक्सीन। ये जो चीजें है ना, जाइलिटॉल, लैक्टिटॉल, सॉर्बिटॉल, लाइसिन, अब इसको जाइला सोले से याद रख सकते हैं। एक छोटा सा निमोनिक है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट यही बन पाया, जाइला सोले। जाइला सोले क्या होता है कि जाइलिटॉल और लैक्टिटोल का जाइला बन गया और सॉर्बिटोल और लाइसिन का सोले बन गया। मतलब जाइला सोले एक नाम की लेडी थी जो कि चीनी बनाती थी अपनी कंपनी में और उसकी चीनी काफी ज्यादा कैलोरिक होती थी, तो जाइला सोले में भी आपको शायद उससे याद रहे। फिर नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स के जिनमें कैलोरीज नहीं होती, ठीक है, बट टेस्ट स्वीटनिंग टेस्ट होता है। जैसे कि काफी ज्यादा यूज करते हैं मार्केट में सैक्रिन और एस्पार्टेम। सैक्रिन और एस्पार्टेम काफी ज्यादा यहाँ पे यूज किया जाता है। जो एस्पार्टेम होता है उसका एक नया नाम भी होता है, दैट इज न्यूट्रा स्वीटनर। न्यूट्रा स्वीटनर अगर पेपर में क्वेश्चन करके आता है कि न्यूट्रा स्वीटनर क्या होता है तो वो नॉन कैलोरिक एस्पार्टेम होता है, ठीक है। और फिर हम आगे चलते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। फिशर्स आ जाते हैं फिर कि कुछ टूथ में कई कई टाइप के फिशर्स होते हैं। मतलब बंदे को अगर शुरू में केरीज होने लगती हैं तो डिफरेंट टाइप के फिशर्स बन जाते हैं, जिसको हमने क्लासिफाई करा हुआ है VUIK में, ठीक है। मैंने छोटे से डायग्राम भी बनाया हुआ है साइड में, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। VUICA कुछ ऐसा, VUIC
एक आई होता है, एक आई के होता है, एक इन्वर्टेड वाई होता है, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये बहुत सारे टाइप की मॉर्फोलॉजीज होती हैं, जिसमें कि जो वी और यू वाला टाइप का होता है वो सेल्फ क्लिनजिंग होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं थोड़े वाइड होते हैं, तो अपना आप क्लीन सेल्फ क्लिनजिंग होते हैं, गेरीज नहीं हो पाती इनमें, और ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक की जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। इस टाइप के फिशर्स होते हैं। लेकिन जो आई के टाइप के फिशर्स होते हैं वो केरी ससेप्टेबल होते हैं, उनमें केरीज होने के बहुत चांसेस होते हैं, उनमें इन्वेजिव टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिशर्स के बाद हमारे पास एक टर्म आती है, डेंटल क्रिपल बहुत ज्यादा टर्म यूज करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन मीन्स अ चाइल्ड हु हैज लॉस्ट मेनी टीथ, ठीक है। अगर एक बच्चा उसने काफी सारे टीथ लॉस हो गए हैं, तो हम उसके लिए टर्म ये नहीं कहेंगे कि इस बच्चे के टीथ लॉस हो, हम कहेंगे इट हैज डेंटल क्रिपल, ओरल क्रिपल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक टर्म है। फिर हमारे पास एक टेबल आती है जिसमें ट्रीटमेंट मोडालिटीज के बारे में लिखा हुआ है, प्राइमरी इंसाइजर्स के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली है परमानेंट इंसाइजर्स के लिए, नीचे वाली। तो ऊपर वाली ये प्राइमरी इंसाइजर्स के लिए एक टेबल बनाई हुई है कि अगर बच्चे का दूध के दांत, आगे वाले दांत अगर ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं तो आप कैसे उनको ट्रीट करें, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है कि भी क्या क्या चीज इन्वॉल्व हुई है। अगर सिर्फ इनामल इन्वॉल्व हुई है तो क्या करना है, इनामल डेंटिन हो गए, पल्प भी हो गया, रूट भी हो गई, तो क्या क्या करना है। अगर इनामल इन्वॉल्व होता है, पता कैसे चलेगा कि इनामल इन्वॉल्व है, या आप एक्सरे से पता चलेगा, ठीक है। अगर इनामल इन्वॉल्व दिखता है आपको एक्सरे में, तो आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है उस चीज को, ऐसे कोई पल्प ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है। रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट अगर आप करें तो आप उसको स्मूदन कर सकते हैं, थोड़ा से उसके रफ एजेस अगर बने हुए हैं तो उसको स्मूथ आउट कर दीजिए और फ्लोराइड लगा दीजिए, बस। मतलब अगर आपके पास एक ऐसा बच्चा आता है, ठीक है, जिसका एक्सरे में आपको सिर्फ दिख रहा है कि सिर्फ इनामल इन्वॉल्व है, तो आप उसका पल्प का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन जो बाहर से अगर मैं कुछ रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट करना चाहूँ तो मैं उसके ऊपर स्मूदन एजेस करूंगी और फ्लोराइड अप्लाई कर दूंगी। फ्लोराइड कैसे अप्लाई करते हैं, काफी सारे टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लोराइड होता है, नहीं सोल्यूशन होते हैं जो अप्लाई करके छोड़ देने होते हैं, फिर वॉश ऑफ होते हैं। अगर मुझे उस बच्चे के एक्सरे में ये दिख रहा है कि इनामल डेंटिन दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है, बस पल्प नहीं है, इनामल डेंटिन इन्वॉल्व दिख रहा है, तो मैं इसमें पल्प को बचाने का क्या ट्रीटमेंट करूंगी कि मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जीआईसी की लाइनिंग लगाऊंगी, या तो जीआईसी लगा लूंगी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा लूंगी। जीआईसी जो रेस्टोरेटिव वाला टाइप होता है वो लगा दूंगी, ठीक है। और अगर रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ तो उसमें मैं सबसे पहले एसिड एज कॉम्पोजिट रेजिन यूज करूंगी, फिर ओपन फेस स्टेनलेस स्टील क्राउन लगाऊंगी उसके ऊपर, या फिर पॉलीकार्बोनेट क्राउन लगा सकती हूँ। मतलब आई विल गो विद एसिड एज कॉम्पोजिट रेजिन्स, देन आई विल गो विद, आई कैन ऑल्सो गो विद क्राउन्स, स्टेनलेस स्टील क्राउन्स और पॉलीकार्बोनेट क्राउन्स। तो ये कर सकते हैं, मतलब रेस्टोरेटिवली अगर आपको इनामल डेंटिन दोनों दिखाई दे रहे हैं तो उस टाइप में उस बच्चे को एसिड एज कॉम्पोजिट रेजिन दे सकते हैं या क्राउन्स दे सकते हैं। और उसके पल्प को बचाने के लिए विल गो विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जीआईसी लाइनिंग। तो इतना चलता है अगर पल्प इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर पल्प इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है, ऑब्वियसली इनामल डेंटिन पल्प अगर है इन्वॉल्व, तो अब पल्प को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मोक्रिसोल पल्पोटमी या पल्पेक्टमी करेंगे। हम पल्पोटमी पल्पेक्टमी करेंगे क्योंकि पल्प इन्वॉल्व हो चुका है। इफ डी वाइटर और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस अगर है तो हम फॉर्मोक्रिसोल पल्पोटमी पल्पेक्टमी करेंगे, फॉर्मोक्रिसोल का इस्तेमाल करेंगे अगर वो डी वाइटल और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का सीन है, ठीक है। वैसे रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, वही स्टेनलेस स्टील क्राउन्स देंगे, ओपन फेसेट वाले क्राउन्स। जो स्टेनलेस स्टील है उनकी क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, ओपन फेसेट क्या होता है, क्लोज फेसेट क्या होता है, दैट यू शुड गो एंड सर्च। साथ में अब हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिट रेजिन कर सकते हैं और स्ट्रिप क्राउन भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज हम दे सकते हैं अगर पल्प इन्वॉल्व हो जाता है तो, ठीक है। फिर बात आती है कि अगर मान लो रूट फ्रैक्चर हुई है बंदे की, ठीक है, ऐसा कुछ बाकी सीन नहीं है, रूट का हमें दिख रहा है कि फ्रैक्चर हो गई है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, जब जिस टूथ की रूट इन्वॉल्व हो जाती है आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। नहीं तो ऑब्जर्व करने के बाद भी अगर कुछ सीन नहीं बन रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो सीधा उसका इलाज क्या है, एक्सकेवेशन, एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी या फिर स्प्लिंटिंग कर सकते हैं अगर आपको एक्सट्रैक्शन नहीं करनी तो, ठीक है। दो इलाज होते हैं
और इसके लिए अगर आप एक्सट्रैक्ट कर देते हैं उसको तो आपको फिर स्पेस मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी रेस्टोरेटिवली, मतलब हमें मुंह में स्पेस मेंटेनर लगाना पड़ेगा बच्चे के अगर रूट फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, अगर एवल्शन हो जाए, बच्चे का दांत निकल के बाहर चला जाए, तो पल्प का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन रेस्टोरेटिवली स्पेस मेंटेनर लगाएंगे, क्योंकि अब दांत निकल के चला ही गया सॉकेट से तो वहां पे जगह खाली बच गई, तो स्पेस मेंटेनर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर दांत डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, सिर्फ डिस्प्लेस हुआ है, तो आपको ऑब्जर्व करना है, या फिर ऑब्जर्व करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन कर दोगे तो स्पेस मेंटेनर लगाना पड़ेगा, या फिर आप ऑब्जर्व अगर कर रहे हैं तो आपको उसकी इमोबिलाइजेशन करनी, बिल्कुल नहीं हिलने देना उसको। ठीक है, ताकि हम उसको देखें कि वो क्या सेट होगा या नहीं होगा। अगर इंट्रूजन है, अंदर घुस जाता है दांत, तो इफ देयर इज नो डैमेज टू परमानेंट टूथ क्रिप्ट, वेट टू रीअरप्ट। ठीक है, अगर अंदर घुस जाता है दांत, थोड़ा धस जाता है अंदर, और अगर एक्सरे में आप देख रहे हो कि ऐसे परमानेंट टूथ के क्रिप्ट को कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो हम वेट करते हैं रीइरप्शन का। अगर डैमेज हो गया है तो फिर तो एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन इज नीडेड, इसमें कोई रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, एक्सरे पे एग्जामिन करके ही पता चलेगा। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो यू कैन बार बार देख सकते हो आप इस वीडियो को, नहीं तो आप यू कैन गो एंड फाइंड द टर्म्स इन योर बुक्स ऑल्सो। अलॉन्ग विद दिस यू कैन ऑल्सो गूगल द टर्म्स अगर कुछ टर्म्स समझ में नहीं आ रही हैं तो। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो हम बात कर रहे हैं ट्रॉमेटाइज्ड परमानेंट इंसाइजर्स। अगर परमानेंट हैं, आगे के दांत अगर परमानेंट वाले हैं, दूध के नहीं हैं, और उनमें अगर इस टाइप के कुछ हो रहा है, बच्चे की ही सारी चीजें चल रही हैं, तो अगर उसमें ट्रॉमा वगैरह दिखाई दे रहा है तो उसमें क्या करना है। ठीक है, अगर उसमें इनामल इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली बात है क्लास 1 है, तो वही कुछ नहीं करना, ऑब्जर्व करना है, स्मूथ एज करना है रेस्टोरेशन में, या फिर एसिड एज कंपोजिट रेजिन कर सकते हो आप इसमें, क्योंकि परमानेंट है तो यू कैन डू सम हाई लेवल थिंग्स। एसिड एज कंपोजिट रेजिन कर दो, जब बच्चों में हमने वो इनामल डेंटिन में किया था, हमने इनामल में कर सकते हैं। अगर इनामल डेंटिन रोड है, वही चीज पल्प के ट्रीटमेंट के लिए आपको लाइनर लगाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरी वही चीज रेस्टोरेटिव में एसिड एज कंपोजिट रेजिन करना है। टू रिटेन द रेस्टोरेशन, टेम्परेरी क्राउन्स लाइक एक्रिलिक, पॉलीकार्बोनेट एंड ओपन फेसेड स्टेनलेस स्टील क्राउन, सेम चीज है। यहाँ पे आप एक्रिलिक का भी लगा सकते हो, पॉलीकार्बोनेट का भी लगा सकते हो क्राउन, और ताकि हमारी रेस्टोरेशन लगी रहे तो हम क्राउन लगा सकते हैं उसके ऊपर, या फिर हम एसिड कंपोजिट रेजिन कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक चीज आती है कि इनामल डेंटिन पर तीनों इन्वॉल्व हो गए हैं, उसको हम क्लास 3 बोलते हैं। ठीक है, क्लासेस डिवाइड करी हुई है यहाँ पे, डिफरेंट क्लासेस डिवाइड करी हुई है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो अगर क्लास 3 का सीन अगर आता है यहाँ पे, तो क्लास 3 में आपको क्या करना है, अगर देखना है एपेक्स ओपन है या नहीं है। अगर ओपन एपेक्स है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पल कैपिंग करनी पड़ेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोपोटमी या फिर पैक्सिफिकेशन। ठीक है, फिर टेम्परेरी क्राउन लगाना पड़ेगा, जैसे कि ऊपर बता रखा है, सेम चीज, दैट्स द सेम थिंग, क्राउन लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पल कैपिंग करेंगे, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पल्पोटमी और पैक्सिफिकेशन। लेकिन अगर क्लोज्ड एपेक्स है तो आप डायरेक्ट पल कैपिंग पल्पेक्टमी कर सकते हो। ठीक है, और इसमें भी वही चीज है, एसिड एज कंपोजिट कर सकते हो, जैकेट क्राउन लगा सकते हो, पोस्ट कोर क्राउन। यहाँ पे डिफरेंट ये आता है कि अगर आप क्लोज एपेक्स कर रहे हो तो यू कैन गो विद जैकेट क्राउन, यू कैन गो विद पोस्ट कोर क्राउन एंड एसिड एज कंपोजिट। नेक्स्ट चीज, अगर रूट फ्रैक्चर हो जाती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, रूट फ्रैक्चर अगर होती है तो क्या सीन है उसका। अब आपको एक्सरे में देखना है कि सर्वाइकल 1/3 तक रूट फ्रैक्चर जा रहा है, या मिडल 1/3 तक जा रहा है, या एपिकल 1/3 तक जा रहा है। अगर सिर्फ सर्वाइकल रीजन तक है तो यू कैन गो विद आरसीटी और यू कैन डू एक्सट्रैक्शंस। इफ इट इज अप टू मिडल 1/3 यू शुड गो विद स्प्लिंट। ऑल्सो अगर अपाइकल तक जा रहा है तो स्प्लिंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक्सरे में देख के हिसाब से कि अगर काफी नीचे तक जा रहा है तो स्प्लिंटिंग होगी, अगर सर्वाइकल एरिया में है तो आरसीटी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। रेस्टोरेटिवली उसका क्या सीन होगा कि आप गोल्ड का कोर विद पीएफएम क्राउन दे सकते हो, या फिर आप अगर निकाल रहे हो तो स्पेस मेंटेनर दे सकते हो, या फिर आप फिक्स प्रोसेस अप्लायंस स्पेस मेंटेनर की जगह आप एफपीडी भी दे सकते हो। ठीक है,
अगर रूट फ्रैक्चर हो जाती है तो। रूट फ्रैक्चर में हम गोल्ड कोर विद पीएफएम क्राउन देते हैं। नेक्स्ट, अवल्शन अगर वो निकल के चला ही गया है तो अब क्या इलाज बचा है? बस आप इसमें रीइम्प्लांट कर सकते हो। फर्क है कि दूध के दांतों में तो हमें पता होता है कि परमानेंट आ जाएंगे, लेकिन अगर परमानेंट ही दांत अवल्शन हो जाता है तो यू शुड गो विद रीइम्प्लांट, और यू कैन गो विद स्प्लिंट फॉर 10 to 14 days एंड ऑब्जर्व। डिस्प्लेस अगर हो रहा है, अगर डिपेंड करता है कि ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो आपको उस चीज को कुछ नहीं करना, आप एक्सट्रैक्ट मत करवाइए उसको, आप इमोबिलाइजेशन की तरफ चलिए। अगर ऑक्लूजन विद मोबिलिटी हो रही है तो वो भी डिपेंड करती है कि काफी है, माइल्ड है, सीवियर है, तो उसमें भी आपको उसको बचा के रखना है। इमोबिलाइजेशन करवाइए या फिर रिलीव फ्रॉम ऑक्लूजन करवाइए। तो यहाँ पे थोड़ा फर्क क्या है कि हम परमानेंट वाले दांतों को ज्यादा एक्सट्रैक्शन की तरफ नहीं जाते अंटिल की रूट ही बिल्कुल खराब हो गई है। बाकी हम स्प्लिंटिंग की तरफ ज्यादा जाते हैं और इमोबिलाइजेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट गो विद अनदर वन पेज, दैट इज योर अनदर टेबल। ओके, तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन दी हुई है एंडरसन की, WHO क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीरियर टूथ फ्रैक्चर्स। ठीक है, एंटीरियर टूथ अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो किस किस टाइप का फ्रैक्चर होता है? फ्रैक्चर ऑफ इनामल या फ्रैक्चर ऑफ इनामल एंड टीथ, या फिर पल्प एक्सपोजर, या फिर रूट फ्रैक्चर, या फिर क्राउन एंड रूट फ्रैक्चर। मतलब एक तो होता है कि सिर्फ रूट का फ्रैक्चर हो गया, क्राउन का भी और रूट का भी। फिर दूसरा होता है कल्शन और लक्सेशन। मतलब एक्यूजन ऑक्यूजन क्या होता है कि अगर पीडियल डैमेज हो जाता है किसी का, या फिर वो लक्सेट हो जाता है, तो वो क्या होगा? या फिर वो इंट्रूजन एक्सट्रूजन हो जाए, या फिर वो एवल्च हो जाए, या फिर वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की तरफ चला जाए। सो दैट इज अनदर क्लासिफिकेशन फॉर दिस एंटीरियर टूथ फ्रैक्चर। तो आपको याद रखना है कि जैसे हमने टेबल में पढ़ा था कि एनामल टीन पल्प रूट फ्रैक्चर, रूट फ्रैक्चर के बाद यहाँ पे कंबाइंड फ्रैक्चर होता है, क्राउन रूट फ्रैक्चर। फिर उसके बाद एक चीज जो आती है वो आता है हमारा एक ऑक्लूजन और लक्सेशन। मतलब लक्सेट हुआ है, या फिर पीडियल फाइबर्स का ब्रेक हुआ है, या फिर अंदर बाहर इंट्रूजन एक्सट्रूजन हुई है, फिर एवल्शन आता है, और फिर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आती है। तो ये एंडरसन की क्लासिफिकेशन है। फिर हमने एक छोटा सा सर्वे करा है, फुल माउथ सर्वे, और रेडियोग्राफ के हिसाब से कि कितनी एज के हिसाब से, ठीक है, इंटीरियर आईयूपीए, पोस्टीरियर आईयूपीए, बाइट्विग, तो कितने नंबर ऑफ टीथ, मतलब ये सब चीजें हैं एंटीरियर आईयूपीए। तो अगर 3 से 5 साल का बच्चा है तो एंटीरियर आईयूपीए का क्या सीन है, पोस्टीरियर आईयूपीए कितने होंगे? तो एंटीरियर आईयूपीए 2 होंगे, पोस्टीरियर कोई नहीं होगा, बाइट्विग 2 है, और टोटल नंबर ऑफ एक्सरे 4 हो जाएंगे। वहीं अगर वो 6 से 7 साल का हो जाता है तो एंटीरियर आईयूपीए 2 हो जाते हैं, पोस्टीरियर पे 4 हो जाता है, और बाइट्विग तो 2 ही है, 8 हो जाता है। अगर वो 8 से 9 साल का हो जाता है तो वही चीज एंटीरियर में 6 हो जाएगी, पोस्टीरियर में 4 रहेगी, और बाइट्विग में 2 रहेगी। अगर वो 10 से 12 साल है तो या तो आप अलग अलग करवा लो, या फिर 12 फिल्म सर्वे प्लस 4 परमानेंट मोलर रेडियोग्राफ करवा लो। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि 10 से 12 साल में 12 रेडियोग्राफ होते हैं, और एडल्ट्स में अगर हम बात करें तो 9, 8, 4, 21 रेडियोग्राफ्स होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 3 to 5 years तक 4, और 6 to 7 years जैसे आता है तो डबल हो जाता है 8, फिर 8 to 9 years में फिर 4 से 12 हो जाता है, फिर 8 to 12 अगर देखें तो 12 ही रहता है, या फिर 16, और एडल्ट्स में 21 हो जाता है। तो ये आपके फुल माउथ सर्वे रेडियोग्राफ्स आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। फिर हम वाइटैलिटी टेस्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे टाइप के वाइटैलिटी टेस्ट बताए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नाम को, हीट टेस्ट विद गटा पर्चा एक टाइप का टेस्ट होता है, एक इथाइल क्लोराइड टेस्ट होता है, एक आइस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर होता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड स्नो होती है। काफी सारे टाइप के टेस्ट हैं ये। आप कार्बन डाइऑक्साइड स्नो यूज कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट यूज कर सकते हो, जो हम यूजुअली करते हैं अपने क्लिनिक्स में। आइस टेस्ट हम करते हैं वाइटैलिटी को चेक करने के लिए। इथाइल क्लोराइड यूजुअली इतना नहीं होता, पर अभी थोड़ा सा क्रेज है इसका, बड़ा है इथाइल क्लोराइड का। और हीट टेस्ट होता है गटा पर्चा के साथ, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली यूज नहीं करते हैं। फिर अब यहाँ पे चीज आती है कि जो ट्रू वाइटैलिटी होती है टूथ की,
वो किस पे डिपेंड करती है? ब्लड सप्लाई पे, ठीक है ना। ब्लड उसमें है नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक और थर्मल टेस्ट हम करते हैं वो सारे हमारी नर्व सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमें ट्रू अगर वाइटलिटी चेक करनी है तो वी शुड गो विद टेस्टिंग ऑफ ब्लड सप्लाई एंड नॉट विद थर्मल और इलेक्ट्रिक। ये चीज इसमें बताई हुई है, क्योंकि थर्मल इलेक्ट्रिकल नर्व्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन वाइटलिटी, ट्रू वाइटलिटी ब्लड पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है पल्प टेस्टिंग गिव्स फॉल रीडिंग इफ रूट फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट और द टूथ हैज अ टेम्परेरी क्राउन और स्प्लिंट। अगर स्प्लिंट है, क्राउन है या फिर इनकम्प्लीट रूट है, तो जो हमारी पल्प टेस्टिंग अगर चल रही है तो वो गलत रीडिंग हो रही है। तो इसलिए हमें देखना पड़ता है, पहले पूछना पड़ता है, हिस्ट्री लेनी पड़ती है, स्प्लिंट्स वगैरह, क्राउन वगैरह और इनकम्प्लीट रूट तो नहीं है, एक्सरे वगैरह देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट चीज इसमें है कि इफ इंजर्ड टूथ रिक्वायर्स, सॉरी एक चीज रह गई, द टीथ in the immediate areas as well as those in the opposing arch should be tested. आपको सिर्फ ये नहीं है कि जो दांत अफेक्टेड लग रहा है वही चेक करो, साथ के साथ आसपास वाले दांत भी चेक करने हैं और अपोजिट आर्च वाले भी चेक करने होते हैं। ये एक बेसिक रूल होता है, ये सारी एंडो की चीजें बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि इफ इंजर्ड टूथ रिक्वायर्स मोर करंट देन दैट फॉर अ नॉर्मल टूथ टू गिव रिस्पॉन्स इट इंडिकेट्स पल्प डेथ। कई बार क्या होता है कि जो इंजर्ड टूथ होता है बाकियों के हिसाब से ज्यादा इलेक्ट्रिक रीडिंग पे उसकी शो होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो मर चुका है, उसका पल्प डेड हो चुका है। नेक्स्ट, इफ लेस करंट इज नीडेड टू इलेक्ट अ रिस्पॉन्स, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो सिर्फ ट्रॉमेटाइज हुआ है और उसमें पल्प इन्फ्लेमेशन हुई है। कम अगर चाहिए होगा तो ट्रॉमेटाइज और पल्प इन्फ्लेमेशन होगी, ज्यादा अमाउंट चाहिए होगी तो पल्प डेथ है। इफ करंट इज नीडेड टू इलेक्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम इफ लेस करंट इज नीडेड, ये हो चुका है। Tooth tested immediately after a trauma may give negative response as the tooth may be in a state of shock. So the tooth should be retested in a week or 10 days. ठीक है, कभी भी अगर ऐसी कोई इंजरी होती है तो आपको तुरंत उसका टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शॉक की स्टेट में होता है। हमें हमेशा उसको एक टाइम पीरियड के बाद, लाइक अ वीक और 10 डेज के बाद उसको चेक करना चाहिए। थोड़ी सी इमेज ब्लर है इसलिए मैं आपको बोल बोल के बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लेजर डॉपलर इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है, लेजर डॉपलर फ्लो मीटर के बारे में बताया हुआ है और पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बताया हुआ है। ये दोनों जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं वाइटलिटी बेस्ड ऑन ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो हमें ट्रू वाइटलिटी अगर चेक करनी है तो ब्लड सप्लाई के हिसाब से, और ब्लड सप्लाई के हिसाब से हमारे पास दो मेथड होते हैं, लेजर डॉपलर फ्लोमेट्री और ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये दोनों यूज करिए, इंपॉर्टेंट है। फिर प्रेजेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन एंड पल्प स्टोन्स गिव्स फॉल नेगेटिव रिजल्ट्स। हमें एक्सरे में ये भी देखना चाहिए ये पल्प स्टोन्स तो नहीं है, ठीक है, कैल्सिफिकेशंस तो नहीं है। अगर ये सब होगा तो भी रीडिंग नेगेटिव आएगी, फॉल्स आएगी, ठीक है। मॉइस्ट गैंग्रीनस पल्प रेमिनेंट्स गिव्स फॉल्स पॉजिटिव। अगर कैल्सिफिकेशंस वगैरह होती हैं तो फॉल्स नेगेटिव रीडिंग आती है, लेकिन अगर गैंग्रीनस पल्प पड़ा हुआ है तो फॉल्स पॉजिटिव रीडिंग्स आएंगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि भी कई बार गलत तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आता है। गलत पॉजिटिव गैंग्रीनस चीजों की वजह से भी आ सकता है, गलत नेगेटिव कैल्सिफिकेशंस की वजह से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारा हमारा वाइटलिटी के ऊपर था। अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज रीसेंट टेक्निक्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। कौन कौन से हमें लोकल एनेस्थेटिक टेक्निक्स बच्चों में देने चाहिए। काफी सारे नाम लिखे हुए यहाँ पे। EMLA दैट इज यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, एक है डेंटी पैच, एक है जेट इंजेक्शंस, वैंड, टेंस। तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, रीसेंट टेक्निक्स हैं एनेस्थीसिया देने के लिए। तो हम लास्ट से शुरू करते हैं, टेंस से शुरू करते हैं, ठीक है। जस्ट टू मेक इट लिटिल इजी आई एम स्टार्टिंग विद अ स्मॉल वन। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का फुल फॉर्म है ट्रांस इलेक्ट्रॉनिक नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है। किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? लोकल एनेस्थीसिया का रीसेंट टेक्निक है ये, उसमें हम ये देते हैं ट्रांस इलेक्ट्रॉनिक नर्व स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स इज यूज्ड फॉर एनेस्थेटिक इफेक्ट। हम स्टिमुलेशन करते हैं इलेक्ट्रिक तरीके से नर्व एंडिंग्स की, जिसकी वजह से एनेस्थीसिया का इफेक्ट आता है। इंडिकेटेड इन नीडल फॉबिक पेशेंट्स एंड वेयर लोकल एनेस्थीसिया इज इनइफेक्टिव। कई बार क्या होता है, कई जगह पे हमारा LA काम नहीं कर पाता, प्लस कई जगह पे लोग ऐसे होते हैं जिनको नीडल से बहुत फोबिया होता है। उस
टाइम हम टांस टेक्निक यूज कर सकते हैं, टेंस टेक्निक। हम उसमें इलेक्ट्रिक तरीके से नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं ताकि एनेस्थेटिक इफेक्ट आए। तो टेंस एक एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने की टेक्निक होती है। फिर आता है वैंड टेक्निक। ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड इंजेक्शन सिस्टम होता है एंड डोजेज इज कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के हिसाब से डोजेज सेट होती है और कंप्यूटर के हिसाब से इंजेक्शन लगता है। ये पहले पूछा जा चुका है। वैन टेक्निक पता होना चाहिए आपको कि वैन जो है दैट इज, जैसे कि वैन होता था हमारा, अगर आपको पता हो कि बहुत बेसिक्स ये, अगर हम कंप्यूटर पढ़ते थे 9th-10th में तो हमारे पास कई सारे नेटवर्क होते थे। लैंड होता था, एक वैन वैन होता था। तो मे बी आप उससे इस वैन को कंप्यूटर से रिलेट कर सकते हो मे बी। फिर हमारे पास बहुत सारे जेट इंजेक्शन होते हैं। इनका क्या सीन होता है, ये इनको हम निडल लेस एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया होता है। ये ऐसे इंजेक्शन होते हैं इसमें निडल्स नहीं होते हैं और ये पेनिट्रेट कर सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन को, स्किन को अंडर प्रेशर विदाउट कॉजिंग द एक्सेसिव टिश्यू डैमेज। थोड़ा सा होता है, ज्यादा नहीं होता, लेकिन प्रेशर के हिसाब से ये पेनिट्रेट करते हैं। और इसका नाम जो मार्केट में अवेलेबल है जिससे वो सेरेंजेट और मैडजेट के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। तो ये ऐसी नीडल लेस एनेस्थीसिया होता है, प्रेशर के हिसाब से पेनिट्रेट करता है। फिर डेंटी पैच एक ऐसा पैच होता है दैट इज कंट्रोल्ड रिलीजिंग डिवाइस होती है एक, जो धीरे धीरे चीजों को रिलीज करता है। टॉपिकल एजेंट होता है इसमें जो इनकॉर्पोरेट करा जाता है मैट्रिक्स में, विच विल एडेयर टू म्यूकोजा एंड अलाउ अ स्लो रिलीज ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग। ठीक है, म्यूकोजा से चिपक जाता है, धीरे धीरे हल्का हल्का रिलीज होता रहता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल मार्केट में अवेलेबल है वो लिडोकेन ट्रांसओरल डिलीवरी सिस्टम होता है, जो 10-20% कंसेंट्रेशन में आता है लिडोकेन। लास्ट में हमारा जो रह गया यहाँ पे लास्ट में वो है EMLA। ये क्या सिस्टम होता है, ये एक डिफ्यूज टाइप सिस्टम होता है, डिफ्यूज थ्रू इंटैक्ट स्किन टू रिड्यूस द पेन ड्यूरिंग द निडल इंजेक्शन थ्रू द स्किन। ठीक है, ये पहले ही लगा देते हैं हम ताकि निडल लगाने से पहले जो दर्द होता है बंदों को निडल लगाने से वो ना हो, तो उससे पहले लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, क्रीम होती है ये 25 माइक्रोग्राम पर ग्राम लिडोक्लीन या फिर 25 माइक्रोग्राम पर ग्राम परलोकेन की क्रीम होती है ये। इसको हम स्किन पे लगा देते हैं 1 घंटा पहले इंजेक्शन देने से पहले। इससे क्या होता है कि जब इंजेक्शन लगाते हैं दर्द नहीं होता है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि 6 साल से छोटे बच्चों में ही नहीं लगता। तो ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। लास्ट में इस पेज में हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस रह गया है कॉशियस सिडेशन और जर्नल सिडेशन का, सो विल बी कवरिंग इट लेटर। थैंक यू।